Hello students, today we will start the chapter number 12. This is the civics part of your social science book. So let's start. Chapter 12, Indian Constitution. We will learn in this chapter about need and concept of constitution, the Constituent Assembly, the drafting committee, preamble of the Indian Constitution, special features of Indian Constitution. So, what is the need and concept of Indian Constitution? So, Constitution is needed for properly running the government. Constitution कोई भी गवर्नमेंट है उसकी जो न्यायपालिका है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन उसको प्रॉपरली चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होती है. The basic political framework of a country is specified in the constitution of that country. कोई भी देश है उसका संविधान उस देश की जो राजनीतिक व्यवस्था होती है उसका बुनियादी ढांचा होता है. Constitution may be said to be a document which contains laws, rule and regulations for proper governance of a कंट्री. इसलिए जो सटीक शब्दों में कहा जाए तो किसी देश का शासन उसके जो मूलभूत नियम और कानून होते हैं उनके अनुसार चलाया जाता है और इसे और उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो किसी भी तरह से या लिखित हो सकता है या कई जगह तो लिखित नहीं होता है, मौखिक होता है. In the absence of constitution, there is a strong possibility of conflicts between different organs of the government and at the time even a situation of anarchy may arise. तो यदि कहीं पर संविधान नहीं है तो उसके अभाव में जो शासन व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं चल सकती है और इससे जो होता है वो अराजकता की स्थिति निर्मित हो जाती है. लोग अपने कर्तव्यों का, मूल अधिकारों का निर्वाह फिर ठीक से नहीं करते हैं. जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें नागरिकों के जो अधिकार होते हैं वो और साथ में कर्तव्य उसका भी उसमें वो मेंशन होते हैं कि किस तरह से नागरिकों को अपने अधिकारों कर्तव्यों को निभाना है. Formation of Constituent Assembly. Indian Constitution has been drafted by a Constituent Assembly which was formed by mutual consent of the leaders associated with the freedom movements and the British administration. The members of the Constituent Assembly were elected by the then members of the provincial assemblies. 292 members were formed provincial assemblies, 93 from native princely states, and 4 from the chief commissionaries. Thus, there were 389 members. After the partition, the members of the Constituent Assembly were 299. The members of the Constituent Assembly could not be elected directly by adult franchise. Therefore, as a practical solution, provincial assemblies were utilized as election bodies. First meeting of the Constituent Assembly was held on 9th December 1946 and at last and the Sachidanand Sinha was the chairman on the first meeting, and the second meeting were held on 11 December 1946 and Dr. Rajendra Prasad was the permanent chairman in this meeting. The period of 2 years, 11 months and 18 days, total 166 meetings were held in 11 conventions. And at last, the new constitution was passed and adopted on 26th November 1949. And finally, 26 January 1950, which was 1950, the date which was called as the date of promulgation of the Constitution. Some important members of the Constitution Assembly were Pandit Ravi Shankar Shukla, Seth Govind Das, Hari Vishnu Kamath, घनश्याम सिंह, ठाकुर लाल सिंह एक्सेट्रा. तो स्टूडेंट, संविधान सभा का जो गठन था वो उसका आधार 1946 की कैबिनेट मिशन योजना थी जिसमें उसके सुझावों के आधार पर कॉन्स्टिट्यूएंट के एक कैबिनेट का गठन किया गया और उसमें 3 सदस्यों को निर्वाचित किया गया. इसके बाद
धीरे धीरे इसमें कई बैठकें हुई, बहुत सारी बैठकों के द्वारा इस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सेट किया गया। तो संविधान सभा के लिए सबसे पहली बैठक जो हुई वो 9 दिसंबर 1946 को हुई, जिसके चेयरमैन सच्चिदानंद सिन्हा जी चुने गए थे। उसके बाद सेकंड बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट चेयरमैन चुना गया और टोटल 166 मीटिंग और 11 कन्वेंशंस के बाद जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया और एट लास्ट 26 जनवरी 1950 को यह लागू कर दिया गया। जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसमें जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उसमें से बहुत सारे लोगों ने संविधान निर्माण में सहयोग किया, योगदान किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह, बहुत सारे लोगों ने विचार विमर्श किया और जो संविधान था उसको आगे बढ़ाने में, उसको सेट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नॉट एन ईजी टास्क but drafting committee under the chairmanship of Dr. भीमराव अम्बेडकर was formed। ड्राफ्टिंग कमेटी कोई इजी टास्क नहीं था, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अंडर में, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनके अंडर में पूरा जो हमारा संविधान था उसको तैयार किया गया। There was so many subjects included in the committees like rules, business and drafting committee, steering committee, committee of fundamental rights, union power committee, minority rights सब कमेटी एक्सेट्रा। तो संविधान को ड्राफ्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जिनको लेना था, जिनको इंक्लूड करना था, जैसे कि प्रक्रिया समिति होगी, फिर वार्ता किस तरह से होगी, उसका संचालन कौन करेगा, संघ शक्ति किस तरह से होगी, सारे सबके मूल अधिकार क्या हों, अल्पसंख्यकों के अधिकार क्या होंगे, ये सारी चीजें उस ड्राफ्टिंग कमेटी में चर्चा का विषय थी कि किस तरह से हमारे देश के हर नागरिक को सहूलियत मिले और फायदा हो। The draft of constitution was submitted to the President of the Constituent Assembly on 21st February 1948. Thereafter, detailed discussion were held in the Constituent Assembly. तो संविधान का जो लिखित प्रारूप था वो 21 फरवरी 1948 को जो प्रेसिडेंट थे उनको सौंपा गया और इस प्रारूप के विषय में बहुत विस्तृत रूप से उसमें चर्चा हुई और फिर जो आपको मालूम है कि वो 26 जनवरी को हमारा जो संविधान था वो लागू हो गया। In the preamble of the Constitution, the framers of the Constitution have incorporated the objective of the Constitution, so also values and ideals. This is called the essence or spirit of the Constitution. संविधान की जो प्रस्तावना थी संविधान निर्माताओं ने उसमें लक्ष्यों, मूल्यों, विचारों को इंक्लूड किया, इसलिए हम इसे संविधान की आत्मा या संविधान की कुंजी भी कहते हैं। In the very beginning, the preamble of the preamble, it has been indicated that the Constitution has been framed as per the wishes of the people and ultimate powers vest in the people. यह शुरू में ही बता दिया गया था कि संविधान का निर्माण जो है वो जनता की इच्छा से ही हुआ है और अंतिम सत्ता जो है वो अंतिम पावर जो है वो जनता में ही निहित है। As per the 42 second constitutional amendment in 1976, India was declared a socialist secular state और फिर 1946 में 42nd जो हमारा संविधान संशोधन हुआ उसमें हमारे जो भारत है उसको एक सेक्युलर स्टेट, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया गया। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, sovereign, socialist, secular, democratic republic, justice, liberty, equality, fraternity is necessary for every people of the India. हमारे देश का संविधान बताता है कि हर व्यक्ति के लिए जस्टिस होना चाहिए, लिबर्टी होना चाहिए और जो है फ्रेटर्निटी होना चाहिए, इक्वेलिटी होगी, हर हमारे देश का हर नागरिक जो है उसे सारी सुविधाएं मिलेंगी, सभी समान होंगे लॉ के सामने, सभी को न्याय मिलेगा, सभी को प्रोग्रेस के समान अवसर प्राप्त होंगे, ये सारी चीजें हमारे संविधान में निहित हैं।
नाउ स्पेशल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिटन एंड लार्जेस्ट। तो कुछ स्पेशल फीचर्स हैं कि सबसे पहला तो यह है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है और लार्जेस्ट है। देन इट इज रिजिड सो ऑल्सो फ्लेक्सिबल, सोवरेन स्टेट, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, then parliamentary form of the government, federal form of government, independent and impartial judiciary, fundamental rights and duties, directive principle of the states, universal adult franchise and single citizenship. These are the important features of our constitution. तो फर्स्ट ये है कि जो हमारा भारत का संविधान है वो रिटन है और जो है लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा संविधान है। इट इज रिजिड एंड ऑल्सो फ्लेक्सिबल, दैट मीन्स कठोर तो है ही, लेकिन कठोर के साथ साथ यदि किसी कारणवश किसी संशोधन की आवश्यकता पड़ती है तो वो उसके लिए फिर संशोधन करके उसे चेंज भी करते हैं, तो लचीला भी है। सोवरेन स्टेट मीन्स ये हमारा जो देश है वो हमारी जो कंट्री है वो फॉरेन मैटर्स हो चाहे डोमेस्टिक मैटर्स हो अपनी पॉलिसीज को खुद ही डिसाइड करेगा। सोशलिस्टिक एंड सेक्युलर मीन्स जो हमारी भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ही सोशलिज्म को अपनाया जाएगा, समाजवाद को अपनाया जाएगा, और जो पंथ निरपेक्ष है हमारा देश, मतलब कि सभी पंथों को सभी धर्मों को समान अधिकार मिलेगा, किसी के साथ कोई पार्शियलिटी नहीं की जाएगी। इसके साथ गवर्नमेंट का पार्लियामेंट फॉर्म होगा, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स संघात्मक शासन व्यवस्था होगी। संघात्मक का मतलब केंद्र में अलग उन्होंने एक गवर्नमेंट बना दी है, फिर स्टेट्स में अलग बना दी है, सभी अपने अपने क्षेत्रों के लिए डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशियरी मीन्स सभी को समान न्याय मिलेगा, किसी के साथ किसी भी प्रकार की पार्शियलिटी नहीं की जाएगी और सभी स्वतंत्र होंगे। और जो हमारी न्यायपालिका है वो पूर्ण रूप से इंडिपेंडेंट होगी। तो हमारे संविधान से फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज बनाई गई हैं हर नागरिक के लिए, ये है, और सभी को इनका पालन करना होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड फंडामेंटल राइट्स का। So our constitution has given the 6 fundamental rights, and these are the right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right, right to constitutional remedies. As well as we have some fundamental duties, so you have to read these duties and follow also. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट मीन्स जो हमारा देश है वहाँ पर मत का उपयोग किया जाएगा। 18 वर्ष की आयु के ऊपर के जो लोग होंगे वो बिना किसी भेदभाव के अपना मतदान कर सकेंगे और अपना रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव कर सकेंगे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज का मतलब है कि भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह किसी भी स्थान पर रहता हो, किसी भी स्थान पर निवास करता हो, वह भारत का नागरिक माना जाएगा और उसको सभी अधिकार प्राप्त होंगे। यह सिंगल सिटीजनशिप है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट में जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं वो किसी भी न्यायालय द्वारा उसको चेंज नहीं किया जा सकेगा और वो अपना एक मूलभूत स्थान देश के शासन व्यवस्था में रखते हैं। सो स्टूडेंट्स, हियर इज योर चैप्टर 12 इज फिनिश्ड. I am giving you summary only. You have to read the chapter deeply and carefully, and also you have to do exercise by yourself. If you have any doubt, you can consult me at school.